So now after having the knowledge of testing of significance, null hypothesis, alternative hypothesis, error, level of significance, critical region, types of tail of test, right, and significant value, now we will come to the we will know the what is the procedure of testing of hypothesis. So the first step is first step in this, we will set up the null hypothesis H0. Then we will set up the alternative hypothesis, because alternative hypothesis, this will enable us to decide whether we have to use a single tail. Single tail में दो आ जाते हैं, right tail and left tail, और two tail test. ठीक है जी. Then we have to choose the level of significance. It is always fixed in advance. Then we will come to the test statistic. So this is the value of Z, that this is called the calculated value of Z. This is called the calculated value of Z. Test statistic. So you will write the heading जो हमने लिखा है, procedure for testing of test of significance, right? और यहाँ लिखेंगे आप, ऐड कर देंगे for large samples, क्योंकि लार्ज सैंपल्स का मतलब ही क्या है, कौन सा टेस्ट लगना है, Z टेस्ट. सो सबसे पहले सेट कर लिया H0, फिर कर लिया H1, फिर अल्फा को फिक्स कर लिया, 1% लेना है या 5% लेके चलना. ठीक है जी. देन नंबर 4 पे आ गया टेस्ट स्टेटिस्टिक, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू. This is the calculated value of Z. So Z is equal to statistic, क्या जनरल क्या फॉर्मूला है, statistics minus expected of statistic divided by standard error of statistic. This follows N01. This follows normal distribution with the mean 0 and variance 1. So statistics का नाम क्या रखा, T रखा. बेटा statistic is a function of sample values. This is expected of T divided by standard error of T. अगर हमारा T क्या है, sample statistic mean है, ठीक है, या मेरा जो T है वो डिफरेंस ऑफ मीन है, या मेरा T पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है स्मॉल p, तो उस हिसाब से यहाँ पे t की वैल्यू हम एडजस्ट करते जाएंगे. ठीक है. दिस फॉलोज N01. अब सपोज करो t x बार है, तो ये बनेगा z इज इक्वल टू x बार माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार. So we have the formula regarding this. Expected of x bar is always equal to mu, and standard error of the sampling distribution of sample mean, this is sigma by under root n. So when we will do the application, we will do the different statistic to calculate Z. Right? Now, the last step is the comparison. Comparison between calculated value and significant value. और बेटा बहुत सारे नाम हैं, you have to remember this is the tabulated value और critical value. इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. ठीक है जी. सो कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब Z, सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब Z अल्फा. इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा. इफ मॉड ऑफ Z का मॉडुलस लेना है. इफ मॉड ऑफ Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा एट गिवन टेल ऑफ टेस्ट. देखो एट गिवन टेल ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है, अब हम एक जनरल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता ऑल्टरनेटिव जो है वो लेफ्ट आएगा, राइट आएगा या टू टेल आएगा. ठीक है जी.
So that's why I have just mentioned here given tail of test. This is the value of Z at alpha level of significance at for a given tail of test. So Z alpha at a given tail of test and at alpha level of significance. ये Z अल्फा के बारे में बताया गया है, ठीक है जी, राइट। अगर मॉड ऑफ Z अल्फा से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज द, देखो जब Z अल्फा से बड़ा हो गया, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ Z इज सिग्निफिकेंट, दैट इज देयर इज a difference between the sample statistic, जो भी स्टेटिस्टिक होगा, बार बार बता रही हूँ, स्टेटिस्टिक्स मतलब द फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज, इट मे बी सैंपल मीन, इट मे बी डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन्स, इट मे बी सैंपल प्रोपोर्शंस, इट मे बी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी, ये कुछ भी हो सकता है, एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। सो द वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ Z इज सिग्निफिकेंट, दैट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। नल हाइपोथेसिस क्या लेके चले? देयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। तो ये हमारा उल्टा हो गया, इट इम्प्लाइज नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो अगर इसको हम प्लॉट करें, जब हम मॉड ऑफ Z की बात कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ Z का मतलब है वैल्यू दोनों तरफ आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो हमें एक टेल दिया है, सपोज करो हम सिर्फ राइट टेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राइट टेल। तो कल आपको बताया था क्रिटिकल रीजन कहाँ से शुरू होता है? जहां से सिग्निफिकेंट वैल्यू है, उसके अगले वाला जो सारा एरिया है वो अल्फा है। अब Z जो आपने कैलकुलेट किया बेटा, वो Z अल्फा से बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया। तो अगर ये वाला कैलकुलेटेड Z अल्फा से बड़ा हो गया, तो वो किस में पहुंच गया? वो क्रिटिकल रीजन में पहुंच गया। और जब क्रिटिकल रीजन में हमारा स्टेटिस्टिक पहुंच जाता है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज द, so therefore null hypothesis is rejected. So we conclude that there is a significant difference. You will write here, there is a significant difference between the sample statistic and the population parameter, right? And on the another way, दूसरा point, if mod of Z is less than Z, सिग्निफिकेंट वैल्यू से कम होगी टेस्ट, ये डिपेंड करता है हम कौन सा टेल देख रहे हैं, ठीक है जी। सपोज हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं माइनस Z अल्फा, इससे पीछे देख रहे हैं, और यहाँ पे भी वैल्यू है Z अल्फा, सपोज करो टू टेल है, तो दोनों एरियाज में आपकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। मॉड ऑफ Z इज लेस देन Z अल्फा। सो यानी Z की जो वैल्यू है, जो भी Z हमारा आ रहा है, वो किस रीजन में आ रहा है? वो क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, ठीक है। अभी एक टेल से बताती हूँ, व्हेन वी विल डू द एग्जांपल्स, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जब वैल्यू Z अल्फा से पीछे है, मतलब रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में है, जब वैल्यू जो है Z अल्फा से आगे है, तो वो रीजन ऑफ रिजेक्शन में है। ये अल्फा है, ये रीजन ऑफ रिजेक्शन है, ये सारा रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस है, जिसको 1 माइनस अल्फा, जिसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। आपको पूछा जाए वाइवा में व्हाट इज द probability of region of acceptance, and this is 1 minus alpha. What is the probability of region of rejection? This is equal to alpha, right? So if mod of Z is less than less, इसका मतलब हमारी वैल्यू यहाँ कहीं आ गई Z, क्योंकि Z जो है वो Z अल्फा से छोटे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर चल रहा है, ये 0 to infinity है, इधर माइनस infinity। So it implies the value of Z is not significant.
That is, null hypothesis is accepted. So therefore, we conclude that. Therefore, we conclude that there is no significant difference between sample statistic and population parameter. Hypothetical value, बार बार वही वर्ड आते हैं. population parameter का मतलब hypothetical population parameter. You can add here. So this is all about the conclusion. So just see, we compared the computed value of Z with the significant value of Z alpha at a given level of significance. If Z is mod of Z is less than, छोटा हो गया, ठीक है जी. तो अगर ये छोटी हो गई वैल्यू मतलब क्रिटिकल रीजन से पीछे रह गई. It is not significant. It means the difference T minus expected of T is just due to the fluctuation of sampling, and the sample do not provide us sufficient evidence against the null hypothesis. Therefore, it may be accepted. कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है अगर हमारी z की वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू से पीछे आ जाती है. तो z की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है. z किसके ऊपर डिपेंडेंट है? t माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ t पे. इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सैंपल हमें कोई ऐसा डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा जिससे वो डिफरेंस नजर आए. इट इज जस्ट ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग अगर है. So therefore null hypothesis is accepted. But if the value of z comes in the critical region के अंदर आ गए, तो इस केस में the value of z is significant. Therefore null hypothesis is rejected at level of significance alpha and with the confidence coefficient 1 minus. Right? So this is all about the procedure. So now I am coming to the some of the 2 or 3 points that we have to remember. The steps used in normal test are as follows. Compute the test statistics Z under Z. और वही कह रहे हैं भी सबसे पहले test statistics जो है Z उसको कैलकुलेट करना है. If mod of Z 3 से बड़ा हो गया कि बेटा Z की वैल्यू जो है ना वो -3 to 3 में वो सारा एरिया कवर कर लेता है. So the normal distribution में आपने last time when we do the normal distribution, whole normal distribution, तो हमारा जो Z का एरिया है वो almost 99% जो है वो एरिया कवर कर लेता है, right? So this is -3 to 3 में इस तरह से हम बनाते हैं. अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं. 67% आता है, फिर ये आता है. तो -3 सिग्मा से लेके 3 + सिग्मा तक वो सारी वैल्यूज जो है वो कवर कर लेता है, राइट? सो देयरफॉर वो कह रहे हैं अगर मॉड ऑफ z की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, आपने जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू 3 से ही ज्यादा होगी, तो हमेशा याद रखना है नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, राइट? और दूसरे केस में if mod of z is less than or equal to 3, then we test its significance at a given level of significance at 5% or 1%. ठीक है जी? So अगर z की वैल्यू mod z की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, 3 से ज्यादा का मतलब z की वैल्यू 3 से ज्यादा, z की वैल्यू -3 से छोटी. तो अगर इस केस में हमेशा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा. अगर 3 से कम है देन बेटा हमें टेबल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, राइट? So I hope the point is clear to all of you regarding the procedure of testing of significance.